بسم الله الرحمن الرحيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ کو خوش آمدید۔ ہماری آج کی ویڈیو ایک نہایت ہی اہم ٹاپک کے اوپر ہے، جس میں ہم ایگ اور پولٹری انڈسٹری کے کچھ ایسے شاکنگ سیکرٹس ڈسکور بھی کریں گے اور ریویل کریں گے جو آپ نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں سنے ہوں گے۔ خواتین و حضرات، آج ہم آپ کو برائلر مرغی کی افزائش کے بارے میں کچھ ایسے خفیہ راز بتائیں گے جو پولٹری انڈسٹری ہمیشہ سے چھپاتی آئی ہے، اور یقیناً ہم بڑے اعتماد کے ساتھ یہ آپ کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ برائلر مرغی اور انڈے کے استعمال سے پہلے 100 دفعہ ضرور سوچیں گے۔ مگر اپنی ویڈیو کے باقاعدہ آغاز سے قبل ہم ہمیشہ کی طرح آپ سے ایک گزارش ضرور کریں گے کہ آپ ریڈ سبسکرپشن بٹن پر کلک کر کے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے، اور اس کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن پریس کرنا مت بھولیے تاکہ آپ تک ہماری تمام نئی اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز پہنچتے رہیں۔ دوستو، تیزی سے بڑھتی ہوئی انسانی آبادی اور اتنی ہی تیزی سے کم ہوتے ہوئے وسائل کی وجہ سے انسان نے ایسے بہت سے طریقے ڈھونڈ نکالے جس کے ذریعے غذائی ضروریات کو پورا کیا جا سکے۔ بظاہر تو یہ ایک نہایت ہی عمدہ خیال اور بہترین بات تھی، مگر جو چیز فطرت سے دور ہو جاتی ہے وہ ہمیشہ فائدے مند تو کبھی نہیں ہو سکتی، ہاں نقصان دہ ضرور ہوگی۔ یہی حال پولٹری انڈسٹری اور ایگ انڈسٹری کا ہے۔ ویورز، پولٹری انڈسٹری میں دو طرح کی مرغیوں کی افزائش کی جاتی ہے، ایک جن کو پالا ہی گوشت کی غرض سے جاتا ہے، اور دوسری وہ مرغیاں جن کو انڈوں کے حصول کے لیے پالا جاتا ہے۔ ان کو بالترتیب برائلر اور لیئر مرغیاں کہا جاتا ہے۔ اور آپ یہ جان کر حیران رہ جائیں گے کہ جن طریقے سے ان کی افزائش کی جاتی ہے، جن خوراکوں کے ذریعے ان کو بڑھایا جاتا ہے، وہ ہرگز بھی قدرت کے قریب نہیں ہے، وہ ہرگز بھی فطری نہیں ہے۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق دنیا بھر میں گوشت کی مانگ پوری کرنے کے لیے تقریباً 50 ارب کے قریب مرغیاں جو ہیں وہ آرٹیفیشلی ہیچ کی جاتی ہیں۔ ان کو آرٹیفیشلی 42 دن کے اندر اندر مکمل طور پر تیار کر دیا جاتا ہے۔ ذرا سوچئے کہ عام مرغی کی ایوریج عمر جو ہے 8 سے 10 سال کے قریب ہوتی ہے، جبکہ اس مرغی کو 42 دن کے اندر اندر تیار کر کے مارکیٹ میں پہنچا دیا جاتا ہے، اور ہم سب اس کے گوشت کو استعمال کرتے ہیں۔ جانوروں کے حقوق کی عالمی تنظیم پیٹا کے مطابق چکنز جو ہیں یعنی مرغیاں جو ہیں وہ سب سے زیادہ ظلم کا شکار جانور ہیں، کیونکہ ان کی گروتھ کو 65 گنا زیادہ فاسٹ کر دیا جاتا ہے، یعنی مصنوعی خوراکوں کے ذریعے اس کی گروتھ کو، اس کی بڑھوتری کو 65 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ یعنی ایک عام مرغی جتنا جوان ہونے میں اگر 1 سال لے، اس کو 45 دن کے اندر اندر جوان کر دیا جاتا ہے۔ تو یہاں سوال یہ اٹھتا ہے دوستو کہ ان کو آخر ایسی کیا خوراک دی جاتی ہے جس کی وجہ سے ان کی افزائش اتنی تیزی سے ہو جاتی ہے، ان کی بڑھوتری کا عمل اتنا اب نارمل ہو جاتا ہے کہ تقریباً 4% سے زیادہ مرغیاں اپنا ہی بوجھ برداشت نہیں کر سکتی، اور وہ افزائش کی، بڑھوتری کی یعنی گروتھ کی اس اب نارمل سپیڈ کی وجہ سے ماری جاتی ہیں۔ تو خواتین و حضرات، اس ریپڈ بریڈنگ کے لیے یعنی ان کو تیزی سے بڑا کرنے کے لیے جو خوراک استعمال کی جاتی ہے، اس میں رپورٹس کے مطابق خون شامل کیا جاتا ہے،
इन्हीं मुर्गियों की आलाइशें शामिल की जाती हैं, यानी वो आंतें और दूसरा गंद जो मुर्गी के अंदर से निकाल के हम अक्सर नोटिस करते हैं कि कूड़े के ड्रम में फेंक दिया जाता है, वो गंद भी बिकता है और फिर उसको इन्हीं मुर्गियों की फीड बनाने के लिए यानी खुराक बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और फिर खून, अंतड़ियों और दीगर आलाइशों की मदद से और कुछ केमिकल्स डालकर जो खुराक तैयार की जाती है, वो हमारे अंदर पहुंचकर हार्मोनल डिसऑर्डर का मूजब बनती है। ख्वातीन हज़रात, जब भी आप मुर्गी का गोश्त खरीदने जाते होंगे तो अक्सर आपने नोटिस किया होगा कि ये मुर्गियां अपने पांव पर खड़ा भी नहीं हो सकती, यानी ये पिंजरे में बिल्कुल बैठी रहती हैं। हालांकि अगर हम आम घरों में पलने वाली मुर्गियों को देखें तो उनको पकड़ना निहायत ही मुश्किल होता है। ये सब उन अबनॉर्मल खुराकों की वजह से है, उस रैपिड ग्रोथ की वजह से है जो बिल्कुल गैर फितरी और कुदरती है। एक तहकीक के मुताबिक कि जिस इंटेंसिटी की फीड इन मुर्गियों को दी जाती है, अगर वो किसी इंसानी बच्चे को दी जाए, यानी अगर 2 साल के बच्चे को उसी इंटेंसिटी की फीड दी जाए तो उसकी ग्रोथ भी 60 गुना ज्यादा बढ़ जाएगी, यानी वो बच्चा 1 साल के अंदर अंदर इतनी नशोनुमा पालेगा जिसको पाने के लिए अमूमन कई साल लग जाते हैं। और व्यूअर्स, पोल्ट्री इंडस्ट्री का एक और भयानक चेहरा जो हमारे सामने आता है वो ये है कि उमूमन सेफ चिकन या हेल्दी चिकन के नाम से जो मुख्तलिफ कंपनीज हमें चिकन प्रोवाइड कर रही होती हैं, क्या आपके इल्म में है कि ये चिकन किस तरह ज़िबा किया जाता है? ये चिकन किस तरह गोश्त के मुख्तलिफ हिस्सों में बंटकर हम तक पहुंचता है? ख्वातीन हज़रात, ये हजारों लाखों की तादाद में मुर्गियां ज़िबा की जाती हैं और जैसा कि आपको बताया गया कि तकरीबन 50 अरब के करीब मुर्गियां जो है वो गोश्त की मांग को पूरा करने के लिए दुनिया भर में ज़िबा की जाती हैं। क्या ये ह्यूमनली पॉसिबल है? क्या ये इंसान के बस में है कि वो 50 अरब मुर्गियां खुद हाथ में पकड़कर ज़िबा करें? और बहसीत मुसलमान हमारे ऊपर तो ये फर्ज है कि हमने ज़िबा करते वक्त तकबीर पढ़कर उस चीज को अपने लिए हलाल करना है। तो वो लाखों मुर्गियां बल्कि करोड़ों की तादाद में वो ब्रॉयलर चिकन जो हमारे मुल्क में ज़िबा किए जाते हैं, क्या ऐसा मुमकिन है कि हर शख्स एक एक मुर्गी पकड़कर उस पर तकबीर पढ़ता हो और फिर उसको मुख्तलिफ टुकड़ों में बांटकर आपके लिए पैक करके मार्केट में भिजवाता हो? ख्वातीन हज़रात, इन तमाम बड़ी कंपनियों में ज़िबा करने के लिए बड़ी बड़ी मशीनें नस्ब हैं, जिसमें एक ऑटोमेटिक बेल्ट पर मुर्गे को उल्टा लटका दिया जाता है और फिर उस जिंदा मुर्गी को ये ऑटोमेटिक बेल्ट एक खुदकार ब्लेड की तरफ ले जाती है, जो ब्लेड घूमता रहता है और उसके सामने से मुर्गियां गुजरती रहती हैं और उनके गले कटते रहते हैं। यहाँ पर एक निहायत अहम सवाल भी उठता है कि क्या ऐसे ज़िबा होने वाली मुर्गियां हलाल हैं? व्यूअर्स, बात गोश्त पर ही खत्म नहीं हो जाती, यानी अंडों की मांग पूरी करने के लिए भी जिस मसनूई तरीके से अंडों की पैदावार बढ़ाई जाती है वो भी सुनने और देखने के काबिल है और यकीनन ये निहायत अलार्मिंग चीज है। आमतौर पर यह गुमान किया जाता है कि एक आम मुर्गी को अंडा पैदा करने के लिए 34 घंटे दरकार होते हैं, मगर इस पोल्ट्री इंडस्ट्री में अंडों की पैदावार के लिए इस्तेमाल की जाने वाली लेयर मुर्गी तकरीबन साल में 300 के करीब अंडे देती है। इन तमाम मुर्गियों को
बड़े बड़े इंक्यूबेटर्स में पैदा किया जाता है, यानी वो कुदरती तरीका इस्तेमाल नहीं किया जाता जो अमूमन हमारे देहातों में या हमारे घरों में राइज है कि मुर्गी अंडों पर बैठती है और उससे चूजे निकलते हैं, बल्कि मसनूई तरीके से अंडों को हीट पहुंचाकर उनसे चूजे लिए जाते हैं और फिर शॉर्ट आफ्टर बर्थ यानी उनकी पैदाइश के फौरी बाद मेल और फीमेल चूजों को अलग अलग कर लिया जाता है। फीमेल चूजे यानी मुर्गियां जो होती हैं उनको एग इंडस्ट्री की तरफ भेज दिया जाता है, बेच दिया जाता है, जबकि मेल चूजे जो हैं यानी मुर्गे जो होते हैं वो इस इंडस्ट्री में किसी काम के तस्वुर नहीं किए जाते। चुनाचे उन मेल चूजों को या तो फौरन किसी प्लास्टिक बैग्स में, बड़े बड़े बैग्स में बंद करके फेंक दिया जाता है जहां वो दम घुटने से मर जाते हैं, या उनको बड़ी बड़ी मशीन्स में ग्राइंड कर दिया जाता है यानी जिंदा कुचल दिया जाता है। उसके बाद अंडा देने वाली मुर्गियों यानी उन चूजों की चोंचें काट दी जाती हैं ताकि वो एक दूसरे को जख्मी न कर सके। उसके बाद उनकी अफजाइश उन्हीं मसनूई तरीकों से की जाती है जिन तरीकों से उन गोश्त हासिल करने वाली मुर्गियों की जाती है, यानी ब्रायलर और लेयर मुर्गी की अफजाइश में वो तमाम तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं जो सरासर गैर फितरी हैं, जो सरासर इल्लीगल करार दे देनी चाहिए। और फिर जब ये लेयर मुर्गियां अंडा देने के काबिल हो जाती हैं तो फिर इनको बड़े बड़े पिंजरों में दर्जनों बल्कि सैकड़ों की तादाद में इकट्ठे बंद कर दिया जाता है और हमेशा हमेशा के लिए नीम तारीक कमरों में रखा जाता है, जहां वो अपनी जिंदगी के बाकी मांदा 2 साल इसी तरह गुजारती हैं। और फिर जब वो अंडा देने के काबिल नहीं रहती तो उनको या तो ऐसे ही तल्फ कर दिया जाता है या फिर सस्ते दामों होटलों को गोश्त के लिए फरोख्त कर दिया जाता है। तो ख्वातीन और हज़रात, ये थी वो कहानी जो अमूमन पोल्ट्री इंडस्ट्री छुपाए बैठी है, जो लोग इस दास्तान को नहीं जानते हैं और अनजाने में इनके इस्तेमाल से पता नहीं किन किन बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं। ख्वातीन और हज़रात, कोशिश कीजिए कि आप सादा खुराक रखिए, सब्जियों और फ्रूट्स का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कीजिए और घरों में पुराने जमाने की तरह घरों में मुर्गियां पालने का रिवाज पैदा कीजिए। हमें उम्मीद है कि हमारी बात ने आपके दिलों पर कुछ असर जरूर किया होगा। अगर ऐसा है तो हमें कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात से जरूर आगाह कीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। इसके साथ साथ याद दहानी के तौर पे फिर कह दें कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप रेड सब्सक्रिप्शन बटन पर क्लिक करके हमारे सब्सक्राइबर बन सकते हैं और इसके साथ साथ बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिए ताकि आप तक हमारी तमाम नई वीडियोस बाकायदगी से पहुंचती रहे। इंशाल्लाह किसी नए टॉपिक के साथ फिर दोबारा हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।